Hello, my dear students. Good morning to all. In previous class, I gave their homework. I hope that you have completed that one. Now, today we will study here class fifth. Here class, not third. Class fifth and subject math. Class fifth. Subject what? Which one or math? Okay. Now today we will study triangle. Date also 9. Here date 9. Okay. Now triangle and its type. There are different types of triangles are there. By looking that diagram only we have to identify. Triangle means how many sides are there in one triangle? There are 3 sides. A 3-side closed figure. Triangle means what? A 3-side 1, 2, 3. AB one side, BC second side, and AC third side. Means a 3-side but it is closed figure. A 3-sided closed figure is called what? Triangle. A 3-side closed figure is called what? Triangle. Here sides, which are the sides here? AB side, comma BC side, comma AC. These are the 3 sides. Okay, are the sides of the triangle. And vertices, how many in one triangle? How many vertices are there? There are 3 vertices. Angle also 3. Vertex A, vertex B, and vertex C. So keep in mind, in one triangle there are 3 sides. Okay, 3 angles, 3 vertices, like that. Now, for example, angle A, comma angle B, comma angle C are the what? 3 vertices of the triangle. Vertices of the triangle. On the basis of interior angle, triangle are classified into 3 types. On the basis of their interior angle, we can classify the triangle. Which type of triangle? That one. Now look at here. Angle A, angle B, and angle C. All the 3 angles are acute. That's why this triangle name is acute angle triangle. Okay. अगर ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री के नीचे आती है तो एक्यूट बनता है, इसलिए वो ट्रायंगल का नाम हुआ एक्यूट एंगल ट्रायंगल. On the basis of interior angle, triangle are classified into 3 types. A triangle in which all the 3 interior angles are acute. अगर तीनों एंगल एक्यूट है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल. अगर 3 में से एक भी एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री के ऊपर होती है तो वो बनता हो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. Among the 3 interior angle, if any angle value is more than 90 degree, then that triangle will become obtuse angle triangle. Okay. Now this is what if the interior angle, any one angle value is 90 degree. Suppose here in triangle XYZ angle Y value is 90 degree, then that triangle will becomes what? Right angle triangle. Understood? क्या है इसमें? अगर तीनों एंगल की वैल्यू एक्यूट है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल. अगर तीनों एंगल में से एक भी एंगल की वैल्यू अगर 90 के ऊपर होती है वो ट्रायंगल बनता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. अगर तीनों एंगल में से एक भी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है तो वो ट्रायंगल बनता है राइट एंगल ट्रायंगल. अंडरस्टूड? नाउ अभी देखो, अभी ये ट्रायंगल में अगर तीनों साइड अनइक्वल है, जैसे इसकी 4 है सेंटीमीटर, सपोज हियर 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तीनों की वैल्यू अलग अलग है. अगर तीनों की वैल्यू अलग अलग होते हैं वो ट्रायंगल बनता है स्केलन ट्रायंगल. क्या नाम है? स्केलन ट्रायंगल. ए ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 sides are unequal. A triangle in which all the 3 sides are what? Unequal. Then that triangle is called what? Scalene triangle. If in a triangle, if any 2 sides are equal, then that triangle is said to be isosceles triangle. Understood? Now last one is a triangle in which all the 3 sides are equal. 3 sides are equal, then that triangle is said to be equilateral triangle. So यहाँ पे हम एंगल देख के भी पता लगता है ट्रायंगल का, हम क्लासिफाई कर सकते ट्रायंगल को, या फिर साइड की वैल्यू देख के रही. ठीक है. 2 साइड इक्वल आइसोस्केल, तीनों साइड इक्वल इक्विलेटरल, एक भी साइड इक्वल नहीं है तो उसको बोलेंगे हम स्केलन ट्रायंगल. सो अंडरस्टूड? नाउ वी हैव टू स्टडी angle sum property in a triangle. This is triangle ABC. This property you have to by heart. At any cost you have to by heart this property, because for writing this from this property you will get 1 mark. The sum क्या है? Simple property. The sum of the three angles of a triangle is 180 degree. The sum of the 3 angles of a triangle is 180 degree. जैसा अब ये triangle ABC हुआ, measure of angle A
प्लस मिक्सचर ऑफ एंगल बी प्लस मिक्सचर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180। तीनों एंगल के एडिशन करने के बाद 180 ही आता है इसका आंसर। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी हुआ है, ये बाहर करो आप करना है। नाउ लेट अस प्रैक्टिस 8.4 क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स whose angles are given below as acute. If in a triangle, if all the three angles are acute, that means less than 90 degree, then the triangle is said to be acute angle triangle. If in a triangle, if any one angle is getting more than 90 degree, then the triangle is said to be obtuse angle triangle. And last one, or right angle means if in a triangle any one angle is 90 degree, then the triangle is said to be right angle triangle. Now look at which type of triangle you will get, acute, obtuse or right. Here 30 degree, 60 degree and 90 degree. One angle we are getting here 90 degree. So this, what will be the name of the triangle then? Right angle triangle. Why? Because here one angle we are getting here 90 degree. Exactly. So this is, we have right answer here, right angle triangle. Understood? समझ में आया ये राइट एंगल। वाई क्यों राइट एंगल हुआ? क्योंकि ये तो दोनों लेस है 30 डिग्री और 60 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री है ना यहाँ पर, इसलिए वो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। सो अंडरस्टूड? सो नोट डाउन दिस वन। सेकंड एग्जांपल लुक दैट क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स हुज साइड्स आर गिवन बिलो हैज स्केलन, आइसोस्केल और इक्विलैटरल। स्केलन मींस अगर तीनों साइड की वैल्यू अनइक्वल रही, यानी अलग अलग रही तो स्केलन ट्राइंगल। अगर दो साइड की वैल्यू इक्वल रही, दो नंबर इक्वल रहे तो आइसोस्केल। अगर तीनों नंबर इक्वल रहेंगे तो क्या रहेगा फिर? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तीनों साइड की वैल्यू, जैसा अब यहाँ 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर दो नंबर सेम है, इसलिए ये ट्राइंगल क्या हो गया यहाँ पर? आइसोस्केल ट्राइंगल। ए ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आइसोस्केल व्हाट? ट्राइंगल। A triangle in which any two sides are equal is called isosceles triangle. अगर एक भी साइड अलग अलग होते तो यहाँ स्केलन आता था। अगर तीनों साइड की वैल्यू, अगर 6 की जगह 8 भी होता तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन सकता था उस समय। ठीक है। नाउ थर्ड एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। जैसा अभी यहाँ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब ये तीनों नंबर का क्या करना है हमें? एडिशन करने के बाद उसका आंसर 180 निकलता है तो ये एंगल की वैल्यू हो सकती है, नहीं तो नहीं। चेक करना है हमें। जैसा अभी ये 32 डिग्री प्लस 51 डिग्री प्लस 109 डिग्री। अब तीनों का क्या करने हम? वर्टिकली एडिशन करने के बाद उसका आंसर क्या निकलता है? 180 में बताया। तो ये 32, 51 और 109 एंगल रहेंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है 109 पहले, उसके बाद 32 कोई भी ले सकते हैं, उसके बाद 51। तीनों का एडिशन करो आप पहले। नाउ 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12। ठीक है। 12 का 2 कैरी 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9 एंड यहाँ पर क्या है? 1 है। यानी इसका टोटल एडिशन कितना आ रहा है यहाँ? 192, यानी 180 से भी बड़ा आ रहा है। सिंस द सम ऑफ द measures of three angle of a triangle is not 180 degree, therefore this 32, 51, and 109 are not the angles of a triangle. Since some of the measures of three angles of a triangle, since sum of the measure of the three angles of a triangle is not equal to 180 degree, therefore 32 degree, 51 degree, 109 degree are not the angles of a triangle. Are not the angles of a triangle. Understood? This one.
एडिशन किसी भी हालत में उसका 180 आना चाहिए। अब यहाँ पर हम तीनों नंबर को ऐड किए थे। सिंस सम ऑफ द ये एंगल की वैल्यू है, मिक्सचर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री। ओके, therefore 32, 51, 109 are not the angles of a triangle. Understood? So note down this one. Example number 4. Two angles here given of a triangle are of measure 92 degree and 28 degree. What is the measure of the third angle? यानी दो ट्रायंगल में दो एंगल की वैल्यू दिया है 92 और एक 28। जैसे ये ट्रायंगल रफ डायग्राम, दिस इज नॉट एक्यूरेट रफ डायग्राम। You can make A, B, C. I have given their name A, B, C. If you want to take anything, X, Y, Z, P, Q, R as you wish. Okay. So here I took value of angle B 92 degree and angle C 28 degree. Now we have to find the value of angle A. We are going to find the value of angle A. Solution. Suppose in triangle which triangle we took here, ABC, measure of angle B equal to 92 degree, already it is given, and measure of angle what I took it there, C equal to 28 degree. Both values were given. Here reason give there given. Okay, ये दोनों वैल्यू देखे इसका रीजन। अब कौन सी वैल्यू एंगल फाइंड कर रहा है, मेजर ऑफ एंगल ए वी आर गोइंग टू फाइंड, क्वेश्चन मार्क। हाउ टू फाइंड दैट, वी हैव टू अप्लाई दैट एंगल सम प्रॉपर्टी। सो दैट्स व्हाई बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस एग्जांपल आई थॉट दैट वन एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द measure of 3 angle of a triangle is 180 degree. So that property we have to apply. Measure of angle A plus measure of angle B, यह mean measure, plus measure of angle C equal to how much degree, इसका एडिशन करने से 180 डिग्री आना चाहिए। ये रीजन देना है। सम ऑफ द, यहाँ पर अगर रीजन नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क कट जाएंगे। यहाँ पर सम ऑफ द measures of 3 angles of a triangle is 180 degree. Sum of the measures of 3 angles of a triangle is 180 degree. ये लिखना है आपको, ठीक है। अब measure of angle A तो हमें फाइंड करना है, ये as it is, प्लस measure of angle B की वैल्यू हमने क्या लिए थे यहाँ पर 92 डिग्री और डालना, यहाँ पुट करना है हमें, प्लस measure of angle C की 28 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या है, इसको सॉल्व करना है। पहले ये नंबर को ऐड करना है, 92 प्लस 28, 92 प्लस व्हाट 28, डू एडिशन 92 प्लस 28, 2 प्लस 8 10, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 120 डिग्री। measure of angle A as it is, प्लस इन दोनों का ऐड किए तो हमें आंसर आया रहा है यहाँ पर 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 120 उधर हमें भेजना होगा। तो यहाँ पर इक्वल टू साइन है और ये 120 के आगे प्लस साइन है। कोई भी नंबर इधर से हम उधर ले जाते समय साइन चेंज होती है, या फिर उधर का नंबर इधर भी लाने से साइन चेंज हो जाती है। जैसा अभी ये 180 इसके आगे कोई भी साइन नहीं, लेकिन ये पॉजिटिव में है, ठीक है। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए, हम ये नंबर को उधर भेज रहे हैं, तो ये नंबर पहले लिखना है 180 डिग्री। अब प्लस का क्या हो जाएगा, इसमें साइन चेंज होती है 120, ठीक है। अब 180 में से 120 माइनस करना है, 180 में से 120 क्या करना है माइनस, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 2 6, 1 माइनस 1 0, यानी 60 डिग्री। 60 degree. Therefore, measure of angle A equal to 60 degree. That means A is third angle. Measure of the third angle is, therefore, measure of third angle is, measure of third angle is how much? 60 degree. So in this way we have to write that one.
ये दो नंबर का एडिशन करके 180 से माइनस करने का आंसर आ जाता है आपको, लेकिन करना है ये ऐसा जो देखे कोई भी ट्रायंगल लेके उसमें बराबर करो, कम से कम डायरेक्ट आंसर करेंगे तो आता है आंसर ऐसा भी 92 प्लस 28 कर दो, फिर जो आंसर आता है उसको 180 से माइनस करो। अब देखेंगे, अब चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्या मिला था हमें, ए के एंगल क्या मिली यहाँ 60, 180 आता है, यानी तो बी के एंगल कितनी है 92 और सी एंगल सी की वैल्यू कितना लिया था हमने 28, 180 आना चाहिए इसका। देखो अब चेक करो हमारा आंसर ये बराबर है या नहीं, हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे अब 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 8 10, 10 का 0 कैरी 1, ओके 9 प्लस 1 10, 10 में 6 मिला 16, 16 प्लस 2 18 बराबर आता है जो 180, इसलिए ये 60 बराबर है उसमें जो आंसर है। सो अंडरस्टूड, सो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दिस वन, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। So note down this example. Now fifth example, look that one of the acute angle of a right triangle. One of the acute angle of a what it is given right triangle is 35 degree. What is the measure of the other acute angle? What is the measure of the other acute angle? यानी one of the acute angle of a राइट ट्राइंगल। हमें कौन सा ट्राइंगल निकालना है सबसे पहले, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट दिया है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हम रफ डायग्राम निकालेंगे यहाँ पर। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल मतलब अभी नाम कौन सा देना है, एक्स वाई जेड एबीसी जो देना है आप दे सकते हैं एबीसी लिए। अब राइट एंगल यानी एंगल बी होगा फिर 90 डिग्री का, ठीक है, ये 90 डिग्री राइट मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें से वन ऑफ द एक्यूट एंगल, अब ये दो बाकी है एंगल सी और एंगल ए, ये दोनों एक्यूट है। इसमें से हमने लिया, मैंने एक एंगल की वैल्यू एक्यूट एंगल की वैल्यू दिया है या 35 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। अब बचे वाले एक्यूट एंगल की वैल्यू क्या होंगी, मतलब एंगल ए की। इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल किए ना उसी ढंग से यहाँ पर, ठीक है, सेम टू सेम सॉल्यूशन। Suppose in triangle ABC, suppose no need to take suppose, already it is given in triangle ABC, we can take that one. In triangle, this is symbol of triangle ABC, measure of angle, measure क्या देखे वो लिखेंगे पहले, मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और मेजर ऑफ एंगल और कौन सा है सी इक्वल टू हाउ मच डिग्री 35 डिग्री। ये दोनों क्या है, इसका रीजन कहां से आया हमने नहीं ली, ये एग्जांपल में देखे हैं, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है हमें, मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर वो वाला प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल व्हाट सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दो इसका, रीजन नहीं देंगे तो एक मार्क कट सकता है आपका, बार बार मैं रिपीट कर रहा है। सम ऑफ द, ये क्या है, सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ द measures of 3 angles of a triangle is 180 डिग्री। ये रीजन देना बहुत जरूरी है उसमें, ठीक है। अब देखो, अभी देखो यहाँ पर एंगल ए की तो हम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिए, मेजर ऑफ एंगल ए एज इट इज प्लस मेजर ऑफ एंगल बी कितना है यहाँ पर देखो अभी 90 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी कितना है, कितना है, दो एंगल की वैल्यू दिए थे, एक राइट एंगल और एक एक्यूट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अंडरस्टूड। अब ये दोनों का क्या करेंगे आप, प्लस मेजर ऑफ एंगल ए 90 प्लस 35, 90 प्लस 35 साइड में कर रब, 0 प्लस 5 5, 9 प्लस 3 12, ओके 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम 125 को ट्रांसफर करेंगे उधर, क्योंकि हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करना है, इसीलिए
180। अब प्लस का क्या हो जाएगा उधर ट्रांसफर, राइट साइड में हम ट्रांसफर कर रहे हैं 125 पे, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है, माइनस 125। नाउ फ्रॉम 180 यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 125 minus 125. 0 minus 5 possible? Not possible. So cut 0. Write 0 as it is. Borrow 1 from here. Now before 8, which number will left there? 7. Now 10 minus 5, 5. 7 minus 2, 5. 1 minus 1, 0. मतलब 55 equal to 55 डिग्री। यानी ये एंगल एक ही एंगल ए मतलब अदर एक्यूट एंगल इज, एक्यूट एंगल है दूसरा, एक तो एक्यूट एंगल दिया तो दूसरा एक्यूट एंगल मतलब उसकी जो भी आंसर आएगा वो 90 के नीचे आएगा, तो हमारा जो आंसर आया 55 मतलब एक्यूट एंगल है। देयरफॉर द मेजर ऑफ द अदर एक्यूट एंगल इज 55 डिग्री। देयरफॉर द मेजर ऑफ द अदर एक्यूट एंगल इज हाउ मच डिग्री, 55 डिग्री। अब चेक करेंगे आंसर ये बराबर है या नहीं, यानी एक तो 90 है, दूसरा 35 है, 90 दूसरा क्या है देखे था 35, और थर्ड वाले का क्या निकला था आंसर 55। अब इन तीनों का एडिशन करने से कितना आना चाहिए हमें आंसर 180। नाउ देख 0 प्लस 5, 5 प्लस 5 10, कैरी 1। ओके नाउ 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 3 13 एंड 13 प्लस 5 18। ओके बराबर है 180 डिग्री। इसका मतलब अनदर एक्यूट एंगल वैल्यू इज 55 डिग्री। सो अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। सो ट्राई टू सॉल्व दिस। ये दो एग्जांपल प्रैक्टिस करो यहाँ पर अच्छे से ठीक ढंग से। सो नोट डाउन दिस एग्जांपल। नाउ वी हैव टू स्टडी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, सर्कल। सर्कल मतलब कैसा रहता है, गोल रहता है, ठीक है। सर्कल कैसा रहता है, गोल होता है सर्कल, ठीक है। अब दिस इज the first diagram is circle only. All diagrams are given in the on the blackboard. I draw all are circle only. Okay. Now O is the, now here if you want to take here point, any letter you can take. Now I took here O. Now O is the center of the circle. Circle का center है, ठीक है। यहाँ पर लेके हम सर्कल निकाल सकते हैं by using geometrical. We have geometrical instrument that is called what, compass. By using compass या फिर एक्यूरेट निकालना है तो बाय यूजिंग कंपास वी कैन ड्रॉ द सर्कल, ओके। और अदरवाइज बाय टेकिंग कैप ऑफ बॉटल आल्सो वी कैन ड्रॉ द सर्कल। अब इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है, सेंटर क्या हुआ ओ इज द सेंटर। अब यहाँ पर ओ, ये पॉइंट ए सर्कल पे है, ये पॉइंट ए कहाँ पे है, सर्कल पे है। तो ये ओ से सर्कल के सेंटर से ओ तक मैंने लाइन ड्रॉ किया। ओ ए ऑलरेडी आया था, ये सब रेडियस और डायमीटर पहले स्टार्टिंग में बताया था डेफिनेशन, ए लाइन सेगमेंट। अब ये ओ ए क्या बन रहा है यहाँ पर, रेडियस। क्या बन रहा है यहाँ पर, ओ ए रेडियस। व्हाई, बिकॉज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सेंटर, सर्कल के सेंटर से एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी पॉइंट ए है सर्कल पे है ए, और ओ कहाँ पे है, सर्कल के अंदर, मतलब बीच में है बराबर, इसलिए ओ ए क्या बन गया यहाँ, रेडियस। समझ में आया, उसकी डेफिनेशन है रेडियस की, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इधर भी हो सकता है, इधर भी लेने से हम अगर बी, तो यहाँ पर ओ बी भी ज्वाइन किए तो रेडियस ही बनेगा, और रेडियस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। और द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, इसको क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कम्फरेंस। समझ में आया। Now here given look that a circle is the path of a point moving at the same distance from a fixed point. The fixed point is the center. ये fixed point हो गया सर्कल का, is the center. The fixed distance is the radius. Fixed distance is the radius. And the distance around the circle, ये जो distance है around the circle, इसको क्या कहना है, circumference. Circumference का फॉर्मूला है 2 पाई r। ये हायर क्लास में पढ़ना है आपको। सर्कम्फरेंस निकाल सकते कोई भी सर्कल का, लेकिन 2 पाई आर ये फॉर्मूला है उसका। पाई का मतलब यहाँ 22/7 ये वैल्यू है, और आर मतलब रेडियस। अब जैसा मैंने स्मॉल लेटर आर लिया है, वो क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, आर, रेडियस। तो ये हायर क्लास में पढ़ना है हमें सर्कम्फरेंस निकालने के लिए। तो सिर्फ ध्यान में रखना है, जो लास्ट बाउंड्री लाइन है उसको सर्कम्फरेंस कहेंगे हम उसको, ठीक है। अब ये भी बताया था
अगर सर्कल के सेंटर से कोई लाइन सेगमेंट पास होती है तो वो क्या बनता है, डायमीटर है। ये डेफिनेशन मैंने दिया था, रेडियस और डायमीटर स्टार्टिंग में। अब देखो यहाँ पर सर्कल का सेंटर, फिर से ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, पॉइंट यहाँ पर ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी सर्कल पे, ये चारों पॉइंट। अब यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट सी डी सर्कल के सेंटर से पास हो रही, इसलिए ये सी डी क्या कहलाएंगे यहाँ पर, डायमीटर। दिस लाइन सेगमेंट सी डी इज कॉल्ड व्हाट, डायमीटर। ठीक है, क्यों डायमीटर, क्योंकि वो सर्कल के सेंटर से पास हो रही। अब ये क्यों नहीं हो रही डायमीटर ए बी, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रहा, तो उसका नाम है फिर ए बी। ये लाइन सेगमेंट का नाम है, इसको बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलना है, कॉर्ड। अब ए बी नहीं बना डायमीटर, उसका रीजन है क्योंकि ए बी लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रही, इसलिए उसका क्या है, कॉर्ड बोला जाता है। अब सी डी भी एक प्रकार का कॉर्ड है, लेकिन ये इसको हम दूसरा नाम दे रहे हैं, या डायमीटर भी। ये भी डायमीटर मतलब ये कॉर्ड ही है। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसकी लेंथ से इसकी लेंथ, ए बी की लेंथ से कंपेयर करेंगे हम ए बी की लेंथ और सी डी की, तो सी डी की लेंथ ज्यादा आएगी उसमें, इसलिए वी कैन से दैट डायमीटर इज आल्सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल आल्सो। समझ में आया, डायमीटर मतलब ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये डायग्राम देखो, अब इस डायमीटर की वजह से अगर सर्कल में डायमीटर ड्रॉ करके रहा, तो उस डायमीटर की वजह से सर्कल के दो इक्वल पार्ट बनते हैं। ये ऊपर वाला यहां से कट करेंगे हम, तो ऊपर एक पार्ट मिलेगा और नीचे, और दोनों पार्ट रहेंगे सेमी सर्कल। यहां से कट कर दिया हम ये लेके सीजर वगैरह, तो इसका एक आधा पार्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल योर दिस प्रोटेक्टर, ओके, दिस इज योर प्रोटेक्टर, ये डी बोलेंगे ना, ये सेमी सर्कल रीजन है, तो ये आधा ये मिलेगा, आधा दूसरे साइड में, नीचे वाला भी उतना बिल्कुल सेम इक्वल पार्ट में, जितना पार्ट ये उतना ही साइज का इधर मिलेगा। यानी डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड ए सर्कल इनटू टू सेमी सर्कल पार्ट। दिस इज सेमी सर्कल पार्ट फर्स्ट, दिस इज सेमी सर्कल पार्ट सेकंड। समझ में आया। अब ये क्या हुआ, अब इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर सर्कल का सेंटर है ओ, और पॉइंट ए और पॉइंट बी सर्कल पे है। ठीक है, अब ओ ए क्या हो गया, रेडियस, और ओबी भी क्या हो गया, रेडियस। यानी कितने पेयर हो गए रेडियस के, यहाँ दो, टू पेयर्स ऑफ रेडियस। अब दो है इसलिए रेडाई, प्लूरल सिंगुलर, एक रहने से सिंगुलर के लिए रेडियस बोलते हैं, दो से ज्यादा रहे तो उसको क्या बोलना है, रेडाई, आर प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। ठीक है, दो है इसलिए रेडाई। अब यहाँ पर क्या क्या है, सर्कल का सेंटर है, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, और ये वाला ए बी, इसको बोलेंगे हम आर। क्या बोलना है इसको, आर। अब ये आर के बीच में ये शेडेड लाइन है, ये शेडेड लाइन है। अभी ये ए ओ बी, ये क्या बन गया यहाँ पर, सेक्टर। ए ओ बी क्या बन गया, वो सेक्टर। समझ में आया। अब यहाँ पर सेक्टर की डेफिनेशन दिया है यहाँ पर, और डायमीटर का फॉर्मूला मालूम है ना, क्या पहले लिख के दिया था, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, रेडियस को डबल रहता है। ठीक है, अभी सेक्टर मतलब क्या है, ए सेक्टर इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। ये रीजन का है, बाहर थोड़ी है, बाहर तो नहीं है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एनक्लोज्ड बाय एन आर्क, एनक्लोज है, ये बंद है, बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड द पेयर ऑफ रेडियस ऑन द अदर्स टू साइड्स। ए सेक्टर इज ए रीजन, ये रीजन है जो शेडेड वाला किया हमने, इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड टू पेयर्स ऑफ रेडाई ऑन द अदर टू साइड्स। समझ में आया, तो ये सेक्टर है। अब ये क्या हो गया, यहाँ सर्कल का सेंटर तो यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट पास नहीं हो रही, लेकिन जब भी मैंने बताया था ए बी, यहाँ पर अगर नाम दे सकते हैं हम, यहाँ पर नाम अगर देना है तो एक्स वाई वगैरह। अब ये एक्स वाई क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। अब कॉर्ड में ये, अब वहां पर सर्कल के दो पार्ट है, लेकिन दो इक्वल पार्ट नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रही। ये बड़ा साइज है और ये छोटा साइज है। अब उसने जो छोटा वाला है उसको शेड किया है, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, सेगमेंट। क्या बोलना है उसको हमें, सेगमेंट। सो सेगमेंट मीन्स व्हाट, ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज ए रीजन इन द, ये भी इन अंदर वाला है, इज ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड। ये वाला, ये आर्क है, एक्स से लेके कहां तक, वाई तक, क्या हो गया, आर्क, और एक्स वाई क्या हो गया, कॉर्ड। इसलिए ए सेगमेंट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल enclosed by an arc and chord. Understood?
अब ये इसको क्या बोलेंगे हम, ये वाले डायग्राम को, ये सर्कल का सेंटर O है और एक छोटा सर्कल है और दूसरा बड़ा है, उसका भी सेंटर O है, दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, सेम है, यानी O है, ठीक है। दोनों सर्कल निकालने के लिए सेंटर पॉइंट एक ही मिल रहा है, तो ऐसे वाले सर्कल को क्या कहते हैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या कहना है, CON, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी दो अगर सर्कल रहे और दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट सेम रहा तो वैसे वाले सर्कल को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। टू सर्कल विद द सेम सेंटर, टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है लेकिन रेडियस क्या है उनका, इसका रेडियस कम आएगा, ठीक है, और इसका रेडियस अगर हम लेंगे यहाँ तक तो इसका रेडियस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। बड़े वाले सर्कल का रेडियस ज्यादा आएगा, छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या आएगा, कम आएगा। इसलिए टू सर्कल विद द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और लास्ट वाला है, अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही है वैसे, ये और ये, क्योंकि सर्कल के अंदर सर्कल है, एक छोटा एक बड़ा, लेकिन उसके बीच में जो गैप है उसको शेड किया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एनुलस, या फिर रिंग भी बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एनुलस। द रीजन बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, द रीजन बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर कॉल्ड एनुलस, ANNULUS. So understood? This is radius, this one is diameter, and this line segment AB is chord. Because of this diameter, this circle has been divided into two semicircular part. इसको बोलेंगे हम सेक्टर, इसको बोलना है सेगमेंट, इसको क्या बोलना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कौन सा सर्कल, कॉन्सेंट्रिक, और यहाँ पर शेड करके रहा कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, तो उसको बोला जाता है अंदर वाले पार्ट को एनुलस। So keep all this point we have to keep in mind. So understood this one? Now let us practice 8.5. First example, fill in the blanks. A dash of a circle is a line segment joining any two points on the circle. सर्कल पे अगर दो पॉइंट है, यहाँ पर कहीं पर भी दो पॉइंट, जैसा ये रफ डायग्राम सेंटर पॉइंट, जैसा ये A B, अब ये A B क्या हो गया, ये A और B सर्कल के सेंटर से तो पास नहीं हो रहा, लेकिन ए बी क्या हो गया, इसका नाम क्या है, कर्व। ए डैश ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल, इट इज कॉल्ड व्हाट, कर्व, CHORD। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट सेकंड, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, अगर यही लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से पास होते हैं तो क्या बनता है, डायमीटर। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू डैश, क्या है, उसके दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं उस सर्कल के, यानी टू सेमी सर्कुलर पार्ट। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल मीन हाफ सर्कल, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, दो हाफ सर्कल हमें मिलेंगे, टू सेमी सर्कल। ओके, नाउ ए डैश ऑफ ए सर्कल इज ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल enclosed by an arc and a chord. इंटीरियर ऑफ द सर्कल enclosed by an arc, ये आर्क है और क्या है, कर्ड है, एक आर्क और एक कर्ड, उसको क्या बोलेंगे हम, द रीजन ए डैश ऑफ ए सर्कल, इसको क्या बोलेंगे फिर, ये वाले डायग्राम को इसको बोलेंगे सेगमेंट। ए डैश ऑफ ए सर्कल यानी सेगमेंट, ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल enclosed by an arc and a chord. Now fourth, the region between the two concentric circles is called dash. The region between the two concentric circles क्या बोलेंगे हम, एनुलस। क्या बोलना है, एनुलस, ANNULUS। समझा? The region between two concentric circle is called annulus. Now fifth, a dash is the path of a point moving at the same distance from a fixed point in a plane. उसको क्या बोलेंगे हम, a dash is the path, यानी उसको बोलेंगे हम क्या, सर्कल। A circle is the path of a point moving at the same distance from a fixed point in a plane. Now next sixth one, a dash is a chord passing through the center of the circle. जैसा ये chord, ये AB chord है, लेकिन ये पासिंग हो रहा है सर्कल के सेंटर से, तो उसको क्या बोलेंगे फिर, क्या बनता हो, डायमीटर। ए डायमीटर इज ए chord passing through the center of the circle, here diameter. So understood this one, fill in the blanks. So note down this. Now 7, fill in the blanks. Two circle with the same
सेंटर बट डिफरेंट डैश आर्काड कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सेंटर सेम रहता है बट उनका रेडियस डिफरेंट रहता है, ठीक है। टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, उनका रेडियस अलग अलग होता है। छोटे वाले सर्कल का कम आएगा, 2 रहते इसलिए वहां पर 2 रेडियस आते हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रेड आया गया, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। ओके, नाउ इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जैसा ये सर्कल है रफ डायग्राम, सर्कल, ये सर्कल हुआ छोटा वाला, दिस इज सपोज सर्कल, ठीक है। अब सर्कल का सेंटर लिया मैंने O, अब ये लाइन सेगमेंट पास हो रही, अब ओ ए क्या हो गया, रेडियस। अगर यहां पर मैंने पॉइंट लिया, OB भी क्या बन गया, रेडियस। अब यहां पर दिया है रेडियस ऑफ सर्कल इज 12, यानी रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, OA रेडियस हुआ, OB भी क्या हो गया, रेडियस, तो इसलिए ये भी वैल्यू 12। अब टोटल AB क्या है, रेडियस है, सॉरी AB क्या है, डायमीटर। अब डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल आल्सो, इसलिए यहाँ डायमीटर नहीं दिया है, लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब क्या हो गया, वो डायमीटर ही हुआ, ठीक है। तो फिर AB की वैल्यू क्या रहेंगे, फिर 12 + 12 24, या फिर हमारा दूसरा फॉर्मूला है, रेडियस देखे है, रेडियस इक्वल टू अब सर्कल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर, ये फाइंड करना है। फिर डायमीटर का फॉर्मूला था D = 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर। अब 12 2 = 24, ठीक है, 24 आएगा। फिर इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ध्यान में रखना है, लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर बनता है, इज 24 सेंटीमीटर। समझ में आया, मैंने बताया था जो सर्कल के सेंटर से पास होती है लाइन सेगमेंट और डायमीटर होता है, और साथ में इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल आल्सो, दैट आल्सो आई टोल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट 9th वन, इफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज 18 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस इज, डायमीटर रेडियस क्या रहेगा, डायमीटर को हाफ रहेगा। अगर डायमीटर की वैल्यू 18 है तो फिर रेडियस कितना है, अभी देखो यहाँ डायमीटर की वैल्यू D मतलब डायमीटर इक्वल टू हाउ मच गिवन, 18 सेंटीमीटर। अभी क्या फाइंड करना हमें, रेडियस, क्वेश्चन मार्क। फिर रेडियस का फॉर्मूला क्या था, डायमीटर डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब डायमीटर की वैल्यू यहाँ पर है 18 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, फिर 2 9 = 18, 9 आएगा, या फिर 18 का आधा। इफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज 18 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस इज 9, कभी भी रेडियस आधा होता है, किसको, डायमीटर को। समझ में आया। सो नाउ 10th एग्जांपल, लुक दैट, शेड द स्मॉलर सेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हियर गिवन सेक्टर, हियर यू मे बी हियर B, okay. Now OA is the radius, OB also the radius, center of the circle is O, point A and point B is present on the circle. Okay, now OA is called radius and OB is called also radius. Shade the smaller sector, अब सेक्टर को, अब AOB क्या हो गया, ये सेक्टर, इसको शेड करना है तो आप शेड कर सकते हैं इसे, ठीक है, इसको शेड करना है। समझ में आया। नेक्स्ट 11, शेड द स्मॉलर सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेगमेंट मतलब क्या, ये सर्कल का सेंटर है, ये वाला है लाइन सेगमेंट, ठीक है, कार्ड है, इसको बोलेंगे कार्ड। अब कार्ड है और ये वाला आर्क भी है, ये क्या हो गया, आर्क, यहां से यहां तक। अब इसमें हम ये अंदर वाले पार्ट को हमें क्या बताना है, इसमें सेगमेंट, तो इसको शेड करना पड़ेगा। ये क्या हो गया आपका सेगमेंट। सो अंडरस्टूड, सो नोट ऑफ दिस। Now 12th example, look that, shade the annulus in each of the following. Here diagrams are given again 2 3, so one example I am explaining here. Shade the annulus, annulus मतलब क्या, ये दो सर्कल के बीच का जो गैप है, ये वाला, तो ऐसा भी कर सकते शेड, या फिर पूरा you can use color also if you want to shade that one. In this way you shade that. दो सर्कल के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलेंगे हम, एनुलस। सो अंडरस्टूड। सो नाउ होमवर्क, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 318, 319 एंड 320। एट फर्स्ट यू ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 318। क्या दिया है 318 में, देखो पहले, सबसे पहले 318 कहां से स्टार्ट किया हमने आज, ट्राइंगल एंड इट्स टाइप्स। ये पूरा एक्सप्लेनेशन किया मैंने, यहां से ये लिखना जरूरी है। Triangle, give heading at first, triangle and its type from here to here with diagram. Okay, now let us practice 8.4. Okay,
फर्स्ट एग्जांपल का मैं जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल, एक एक करके दिया, एक करके दिया मैं, आप उसी ढंग से आप बी सी डी ई और एफ करना है। सेकंड में भी आल्सो, सेकंड क्वेश्चन आल्सो ए करके दिया, आपको बच्चे वाले एग्जाम्पल करना होगा। थर्ड में भी एक करके दिया, ए बी सी यू हैव टू कंप्लीट। फोर्थ एंड फिफ्थ ऑलरेडी आई हैव डन ऑन द ब्लैक बोर्ड। सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यू हैव टू डू फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 389 390। नाउ पेज नंबर 319 आफ्टर दैट सर्कल, ये जैसा देखे डायग्राम वैसा निकालना है और ये लिखना भी है आपको, ठीक है। पेज नंबर 390, उसके बाद पेज नंबर 320 में क्या दिया, लेटेस्ट प्रैक्टिस 8.4, उसका 9 फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बताया। 10th वाला करके दिया पहला वाला, आपको उसी ढंग से सेकंड और थर्ड डायग्राम निकालना और शेड करना है उसमें। और 11th का भी मैंने बताया था, पहला आपको सेकंड और थर्ड करना है, और 12th का भी पहला बताया सेकंड करना है, सेकंड और थर्ड। तो ये करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ट्राइंगल एंड इट्स टाइप, ये लिखो जैसा दिया है, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने बार बार बताया था आपको याद करने के लिए। ये डायग्राम के साथ ये लिखना है और उसको पढ़ना भी है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद सर्कल हेडिंग देके ये पूरा होने के बाद सर्कल देना हेडिंग, उसमें विथ डायग्राम निकालना है, डायग्राम्स भी, ठीक है। फिर उसके बाद लेटेस्ट प्रैक्टिस 8.5। सो अंडरस्टूड। सो ट्राई टू राइट all these things and try to solve the remaining examples from the latest practice 8.4 and from 8.5.